as PTI candidates because they could not show themselves as PTI candidates through the symbol, election symbol. So then on what basis did the Election Commission allocate them separate symbols, giving them the opportunity to contest the election as independents? Yes. Because the Election Commission did give them symbols and said, go ahead and contest them. Yes. So they recognized them as independent candidates and said, here are your independent symbols, please go and, so is there a form for that? Yes. Because at the end of the day, what matters is the manner in which all this proceeded. And since the Election Commission has not disputed this position and has allowed them to contest the election as independents, then they, remaining within the framework of the Constitution, joined a political party as independents. Yes. Not only did the Election Commission allow them, but I would show from the order of the Election Commission, your ladyship, actually forced them to run as independents. The question which my lord... Compelling circumstances are relevant here. The question which my... The point is, the reason for that, why that happened, it seems to me, is that there was an intervening event. Yes. And that event was that the denial to the political party of the election symbol, which was upheld finally by the Supreme Court and affirmed. The Election Commission could not deny that they were members of a political party because of this form. Yes. But they couldn't allocate an election symbol to them because of the judgment. Yes. The only possible answer, course then was to allocate a symbol which was not given to any other political party. Yes. And that's all that happened. This denied them both. This answer is... Question to you is, does that change their status and make them independent? Let me first show to your lordship what happened and then I'll answer the question. Please. पहले मैं दिखा दूं कि क्या हुआ actually. लॉ पे जरा चले 67(2) अगर पढ़ेंगे 67(2) पढ़ ले जरा सर अगर आप देख लेते हुआ क्या है तो एक मिनट के लिए होने को बाद में देखें जैसे माय लॉर्ड जस्टिस मुनीफ साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास क्या ये इख्तियार था कि जो दो फरीक राजी होते हैं कि मैं आपका कैंडिडेट वो ठीक आप मेरा कैंडिडेट तो क्या इलेक्शन कमीशन उसको ये हुआ नहीं मैं आपको दिखाता हूँ क्या जरा 2 पढ़ लें जी 67(2) जी सिंबल का मामला है जी इन रिकॉर्डिंग द वोट कैंडिडेट 67(2) section okay. A candidate nominated by a political party at an election in any constituency shall be allotted the symbol allocated by the Commission to the political party under the provisions of Chapter 12 and no other symbol. Prescribed का जिक्र है इसमें जी Prescribed. But the Election Commission itself withdrew that symbol. 67 and gave them independent candidate symbols. So what is the debate here? What the Act assumes is that at all times a person, a candidate nominated by a political party shall contest the election under that election symbol. And that's all that it's trying to do and control. But if for whatever reason the Election Commission withdraws that symbol, that is contested, attains finality, can the Election Commission then turn around and say, you can't contest the election, you are not a member of that political party? It can't, it seems to me, say that because Form A of the parent statute says he is. Therefore, the only option left was the practical solution created by the Election Commission of a problem created by the Election Commission itself was to give him a symbol of other than his own political party, which he couldn't, which is mentioned and any other political party which he couldn't get. And there were any other symbol. That's not what the Election Commission did. इसमें एक और बात भी है one section 1 में सर अगर वो आप ऑर्डर नहीं देखेंगे ये चीज समझ में नहीं आएगी सबसेक्शन साहब आपकी क्या पोजीशन है व्हाट इज योर लीगल पोजीशन हियर आप You contest the election independently or you were the candidate of PTI? सर मैं आपको एक ऑर्डर देखें ना इसका बड़ा इम्पैक्ट है आपको मेरी पोजीशन समझ में नहीं आएगी जब तक आप इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर आपसे पूछ रहे हैं आपकी पोजीशन क्या समझना इसमें क्या है ये सवाल है ना आप अपना तो बताइए ना पहले व्हाट इज योर लीगल पोजीशन
page 21 of the additional document, there is an order of the election commission. Sir, मैं बता रहा हूँ. We understand. देखें, क्वेश्चन में आप चले गए, रिवर्ट हो गए हम दूसरी तरफ. नहीं, ये बात नहीं सुने हुआ, ना, नहीं अभी हुआ. आप यहाँ पे सिंधी इत्तेहाद उसकी तरफ, सुन्नी इत्तेहाद की तरफ से है ना, पहले सुन लीजिए. Have some patience. अगर हम उस तरफ चले जाते हैं, जैसे कि some my lords have asked a question, कि there is only a question of symbol. If there was no symbol, even then you attach the certificate with your nomination paper that you are contesting the election from a political party. ठीक है. अब आप बाद That में was rejected. तो फिर इस वक्त आपका स्टेटस जो है, you have to inform us That was first rejected. that- That is why status was independent. Yes, तो इंडिपेंडेंट आप इस वक्त इंडिपेंडेंट हैं. Yes. नहीं ऐसे ऑटोमेटिकली नहीं बनेंगे. Sir, page 21. एक सवाल मैं आपसे और पूछ लेता हूँ. सियासी पार्टी को सिंबल नहीं मिला बिकॉज इलेक्शन नहीं हुई. ठीक है. जो उनके लोग थे जो अप्लाई कर रहे हैं, उन्होंने अप्लाई किया क्योंकि अब वो डोमेन में नहीं है, किसी की डोमेन नहीं में. ये जो आप कह रहे हैं इंडिपेंडेंट कह लें, पीटीआई कह लें, जो भी आप इनको कह लें, शख्सियात जो हैं वो अप्लाई कर लेते हैं कि मुझे बैठ दे दें. उन्होंने कोई दरखास्त दी ऐसी? सर, उन्होंने सिंबल्स की दरखास्त जी, बैट की दरखास्त पेज दी? 21 अगर आप देखिए, पेज 21 देखिए, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स का ये इशू सुप्रीम. फिर वो चैलेंज क्यों नहीं किया अगर उनको नहीं मिला? सर, अब अगर आप ऑर्डर तो देख लेना, बट आप इलेक्शन पेज 21 ऑफ द एडिशनल डॉक्यूमेंट्स. ये आज वाला बुकलेट जी, ये सर, ये तो केस लॉ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मैंने फाइल की. Well, तो जो ऑलरेडी एलोकेटेड है एक पॉलिटिकल पार्टी को, वो दोबारा तो किसी और को मिल भी नहीं सकता. इसका सीएमए नंबर ये है As per the election 5272. मिल ही नहीं सकता एज जी. पर द इलेक्शन एक्ट. कौन सा पैराग्राफ? Sir, page 21. Yes, This is exactly the issue which was taken to the election commission. आप लोग फैसल साहब जी, पेज जो इलेक्शन ऑफ सिंबल्स ऑर्डर 2002 था, जी जी उसकी स्कीम टोटली डिफरेंट थी. जी. दैट मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडिपेंडेंस एंड अ पॉलिटिकल जी पार्टी. जी जो 2017 का एक्ट है, जी. इवन अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज जी. कैन अप्लाई फॉर अ सिंगल यस symbol to contest the election. जी, जी. So a symbol not necessarily जी. is an identification of a political party. बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, बट दिस इज नॉट व्हाट द इलेक्शन कमीशन सेड, पेज 21. मैं ये जी मैं जो समझने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए जो है ना, जी हम probably the election commission got confused. Yes. Because of the election of symbols order 2002 and its scheme. जी क्योंकि वो पुरानी स्कीम ये डिस्टिंक्शन जरूर करती है, लेकिन 2017 के एक्ट हैज ऑल टुगेदर चेंज्ड दैट स्कीम. बिल्कुल. सो सिंबल इज ओनली टू फैसिलिटेट अ पॉलिटिकल पार्टी. बिल्कुल आप सही कह A रहे हैं. political party even without a symbol जी, will still contest as a political party. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. मतलब तो ये हुआ मुनीब कि भी अगर- सही कह रहे हैं, बट द इलेक्शन कमीशन रिजेक्टेड दिस. तो फिर यही बात है ना. तो फिर Page अगर आप- 21. फिर तो ये केस बनता. रिजेक्ट किया. जी. लेट्स सी व्हाट लेट्स सी, वही दिस इज द रीजन ना. पेज 21. लेट्स सी द ये तो तय हो गया कि symbol is the symbol to identify a person, whether he is independent. It cannot. सिंबल के जरिए किसी को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता कि ये किस पार्टी है. उसके लिए सिर्फ फॉर्म जो जैसे माय लॉर्ड जैसे मनीष साहब Yes, कह रहे वो तो election में identify होता है. फॉर्म और 67 जो है वो लाजमी अगर है. सिंबल को हटा दें, ये अगर पॉइंट जो है ना, देखिए, अगर आप जो बात कर रहे हैं ना, सर, मैं नहीं कर रहा, इलेक्शन कमीशन ने हमारी दरख्वास्त. आपकी बात को आगे कर रहा हूँ कि अगर इन द पोस्ट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की डेट क्या है? 13 जनवरी. इलेक्शन सिंबल्स आर एलोकेटेड आफ्टर दैट डेट. From the same day. Yes, From yes. the same So day. therefore, if each and every one of those candidates who had identified themselves in terms of that Form A of the parent statute, which still controlled, in which the PTI had never repudiated them, if each one of them individually applied for the bat symbol and the election commission individually gave them the bat symbol, the practical effect would have been that the PTI would have got the election bat symbol. But that couldn't happen because of the Supreme Court judgment. So therefore, because the act proceeds on a certain basis, therefore the election commission made, and this is the first of, it seems to me, of a cascading series of errors of law. But this is the first one. They did a bit of a fudge.
and that appears in their reasoning. So आपने पीटीआई की लिस्ट जमा करी थी, पीटीआई की तरफ से रिजर्व कैंडिडेट, Yes. उस पे कंटेस्ट नहीं किया आपने? जी उस पे कंटेस्ट नहीं किया अपनी खुद अपने रिजर्व सीट्स की बात कर यस रहे हैं। यस जी जी आपने फाइल की थी, जी, तो उसको आपने कंटेस्ट क्यों नहीं किया? इसलिए क्योंकि हमने क्योंकि आप पीटीआई अभी जो बात चल रही है तो ये कि सिंबल हैज नो रोल टू सर अगर आप पेज 20 वो ऑर्डर नहीं देखेंगे आपको ये नहीं ऑर्डर किया ईसीपी ने, जी ऑर्डर किया है ना, मैं वही दैट दिखा वाज चैलेंज इन हाई सर कोर्ट। एक देख लें आपको हाँ, ये देखने सारे बताइए। सवाल क्लियर हो चलें जाएंगे 20 बिकॉज इट्स द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स व्हिच मिस्टर फैसल सरीकी, ये बताइए कि इस प्रोसीडिंग्स के अंदर हम उन तमाम इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर्स को दे सकते हैं जो कभी चैलेंज नहीं हुए? मेरी नजर में तो नहीं देख सकते नहीं तो वो पेज 21 का जो ऑर्डर था उसको आपने हाई कोर्ट में नहीं चैलेंज सर किया? एक वो दिखा तो रीजनिंग इस पढ़ पेज लें पे जी, पेज 21 ऑफ द एडिशनल पेपर बुक 5272 जी सर पेज 1 मैं जरा प्रेयर क्लॉज पढ़ लूं ताकि आपको कौन फिर सी वाली रीजनिंग CMA में है? CMA 5272 5272 किधर है? पेज 21 सर तो मिल भी नहीं रही ये 5272 मुझे तो दी नहीं आपने। पेज 21 निकाल दो ना, है तो देख लेते ना ऑर्डर, अगर नंबर ही नहीं पड़े में। your lordships and ladyships have it. Page 21 सर अगर आप देखिएगा क्योंकि ये केस पहले लाहौर हाई कोर्ट गया, उन्होंने रिमांड किया, प्रेयर किया थी। Brief facts of the case are that Mr. Salman Raja filed the writ petition under Article 199 of the Constitution before the Honorable Lahore High Court with the following prayers. तो ये तो आप डिक्लेरेशन प्रेयर जो आपकी पेज 21 पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर है ना ये? जी यही लाहौर हाई कोर्ट ने फिर रिमांड किया। तो आप इसमें डिक्लेरेशन क्लेम कर रहे हैं ना, आप डिक्लेरेशन क्लेम कर रहे हैं कि मुझे पीटीआई का कैंडिडेट बनाओ। जी अब उसी पे बात हो रही है, उसमें तो डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं, क्या जरूरत है आपको? सर जरा सा देख लें उन्होंने क्या कहा। आप प्रेयर क्लॉज पढ़िए। जी जी डिक्लेयर द पिटिशनर इज अ कैंडिडेट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान Tehreek-e-Insaf and not an independent candidate in the general elections 2024 and is entitled to be recognized as such on the ballot paper. On the ballot paper. Yes. This is your. Yes. This is your. Yes. It is not that I am not a candidate of Yes. PTI. Yes. It is that on the ballot paper I need to be recognized. Yes. Which yes. goes to the election yes. symbol. Now let us look at what is the reasoning. बैलेट पेपर का कोई स्पेसिमेन है कहीं Form 33. रूल्स में? जी सर उसमें पार्टी बैलेट का नाम पेपर का सर उसी का झगड़ा था। अगर ऑर्डर आप पढ़ेंगे उसमें मैं उसमें सिर्फ देखना चाहता हूँ बैलेट पेपर लगता कैसे है। उसमें पार्टी का नाम होता है। जी फॉर्म 33 में अगर आप देखिएगा इलेक्शन रूल्स में, सर आप आर्ग्यू करो ना, आर्ग्यू कर दीजिएगा प्लीज। ठीक ये देखिए उसमें दो चीजें हैं ना, सिंबल और पार्टी एफिलिएशन। जी तो जो पार्टी आप एफिलिएशन जरा सी बारीकी बात की समझे नहीं जी वो जो डिक्लेरेशन मांग रहे हैं वो दोनों चीजों को जोड़ना चाहते हैं। जी हमारा जो सवाल जो मैं समझाऊं आपसे जो पूछा जा रहा है वो कि इंडिपेंडेंटली आप क्यों नहीं आपने मांग लिया बैट, फॉरगेट द पार्टी, बैट सिंबल मांग लेते जो भी लोग करना चाह रहे थे इलेक्शन। वो तो बैट ओपन हो गया था। अब तो वो किसी के पास नहीं है ना, ओपन हो गया ना, पब्लिक डोमेन में चला गया। सब तो बैट नहीं मांग सकते ना। नहीं हर कॉन्स्टिट्यूंसी का प्रिंटर फॉर्म अलग होता है। नेचुरली एक में दो नहीं मांग सकते, ये तो बात सही है, मगर एक हुई लाड़काना की, एक हुई लाहौर की, मुझे बताइए कि क्यों नहीं मांग सकते हैं? वो दें या ना दें वो दूसरी बात है। सर they can, because that would have the effect. अभी आपसे जो मैंने जी the proposition I put to you. Yes, because that would imply that PTI is on the ballot On the paper. ballot paper, if individually every PTI candidate applies for What is the, that would be a clear subversion of your lordship's order. that would be violation of Supreme Court. Yes. अगर आप But I kindly read para. ये मेरे ख्याल में तो बिल्कुल नहीं है। 67(1) पढ़े, ये दिस इज नॉट अ वायलेशन ऑफ द सुप्रीम। पढ़े 61 Not be a violation. 67(1) पढ़े जरा प्लीज, इस मौके पे लाजमी है 67(1) ऑफ द एक्ट।
कैंडिडेट के पास ऑप्शंस हैं, वो प्रिस्क्राइब में इसमें कोई भी चूज कर ले या पार्टी वाले ले ले। voter who has received ye 67 section 67(1). a voter who has received a postal ballot paper 67 section 67 जी sorry sir जी subsection 2 या 1 if after withdrawal if any there are more than one contesting candidates in the constituency the returning officer shall allot subject to any direction of the commission one of the prescribed symbols to each contestant प्रिस्क्राइब वो जो जिन्होंने एक लिस्ट बनाई है कि ये 100, 1000, 2000 जितने भी निशान है इनमें से कोई एक दे सकते हैं। अब उसके पास दो ऑप्शन है उसके पास। एक तो पार्टी सिंबल उसे मिलेगा, उस सूरत में अगर पार्टी के पास हो, अगर पार्टी के पास ना हो तो प्रिस्क्राइब में से कोई भी उसे अलॉट हो सकता है। सो इसका कोई असर नहीं है उसके इंडिपेंडेंट होने पे या उसके पार्टी एफिलिएशन। सर साहब ये बताएं कि ये जो किसी पॉलिटिकल पार्टी का जो सिंबल है वो किसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को दिया जा सकता है? नहीं। और दूसरी बात ये कि एक और सिंबल आया था बल्लेबाज की जो पार्टी बनी थी उसके बाद क्या हुआ था? उसको वो सिंबल ये लेना चाह रही थी पीटीआई, उसके साथ क्या सलूक हुआ था? जी बल्लेबाज प्लेयर मेरे ख्याल से या बैट्समैन they actually withdrew their merger मेजर था ना आपका उनके साथ। ये बताएं जी। और बात तो वही होगी ना कि सिंबल उसे मिलेगा, ये उसका हक है, कैंडिडेट का हक है कि कोई भी सिंबल मिले। अगर उसको पार्टी का नहीं मिलता तो प्रिस्क्राइब सिंबल में से 67(1) ये कहता है कि कोई